इस पे एक एक ये खासियत है मैम, इसमें नींद आती है ड्राइवर को। इस पे हाँ, खाली भी पड़ी है फिर ब्रेकर नहीं है, टॉप गियर में गाड़ी चलती है ना, आलकस आ जाता है ना। एक थोड़ा चोरी चकोरी अभी कैंटीन है वो तो चालू नहीं हुई, जैसे चाय भी पीना तो चाय की व्यवस्था नहीं है। अगर टायर पंचर हो गया टायर वाले की भी दुकान नहीं है। हमारा वैसे भी 5,000 रुपये नहीं बच रहा, हम सब मोटर मालिक है, आपको लग रहा है मैडम मोटर मालिक है। The picture of Viksit Bharat, which the government likes to paint, invariably includes this scenery of grand, long expressways dotted across the country, connecting cities without experiencing any traffic jams and significantly cutting down travel time. One of the most important stakeholders whose lives are affected by the construction of these expressways, perhaps more than anyone else, is the humble truck driver. Now, truck drivers, through decades of running on highways and spending their entire lives sleeping on the roadside on their vehicles, have developed a thriving culture which is being tectonically shifted with the emergence of the new expressways. On the older highways, they have a community setup, they have their dhabas, they have their even wine and beer shops, as well as other music shops or mechanic shops to go to, where they become regulars. And those are the ways that they become familiar with, and it sort of defines their world. On the new expressway, which is leading to a lot of fuel saving as well as time saving, this culture is yet to arrive. I, Shubhangi Mishra, along with my colleague Hamad, traveled through the Delhi Jaipur Older Highway and the Delhi Bombay Expressway to understand how the emergence of the new highways is changing the lives of people around it, be it truck drivers, be it dhaba owners, and indeed the villages which these expressways pass through. We traveled with Gafar, a 30-year-old truck driver from Dausa to Delhi via the expressway. Gafar, who has been transporting goods for 16 years now, was bringing bananas from Maharashtra and taking them to Azadpur Sabzi Mandi. He loves the new expressway but has just one complaint. गाड़ी तेजी में चलती है तो गाड़ी खड़ी होने की वजह से कोई नींदों में चलता है। तो अब कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं सर नींदन में भी तो रहते हैं, ज्यादातर नींदन में ही ठुक रही है इस पे गाड़ी। अच्छा। इस पे एक एक ये खासियत है मैम, हम्म, इसमें नींद आती है ड्राइवर को। क्योंकि इस खाली पे पड़ी है सड़क। हाँ, खाली भी पड़ी है फिर ब्रेकर नहीं है, हाँ। टॉप गियर में गाड़ी चलती है ना, आलकस आ जाता है ना। Drivers like Gafar are charioteers of the humble but dominating truck that rules the highways and expressways at nightfall. From colorful jam packed highways with cheap tea, beer, cigarettes at almost every kilometer, to expressways with nobody in sight for miles and miles, the lives of truck drivers are up for a reset. Expressways are the perfect picture postcard for the dream of Viksit Bharat. The government claims that the national highway network increased by 60% between 2014 and 2024, and that high speed corridors have increased from 93 kilometers to 2400 kilometers. Their construction is glamorized and valorized as unprecedented successes of the government. So far, expressways cover close to 3,000 kilometers of roads in India, with the ambitious goal of covering 50,000 kilometers in the cards. The government wants to reduce the travel time of trucks and carriages to make road transport safer, better, and more accessible. On the old highways, life is much slower. At traditional establishments, truck drivers take baths, get their hair done, or even get a drink with friends. But these small luxuries are not on the expressways anymore. ये वाले रोड तो बिल्कुल खत्म थे। कोई रोड मतलब बिहार के रोड तो बिल्कुल एकदम से रद्दी थे, महाराष्ट्र के भी वही पोजीशन थी। कुछ रोड गुजरात के थोड़े बहुत अच्छे थे, राजस्थान के भी ये सब। जब ये दिल्ली जयपुर हाईवे था ये सिंगल था मेरे टाइम में, 4 लाइन तो बाद में बनाया। क्योंकि आज में और उस टाइम में तो बहुत परिवर्तन हो गया, देखो रोडों के मामले में तो बहुत बढ़िया काम हो गया। कहीं कोई से स्टेट में चले जाओ, सबसे बढ़िया काम है। तो अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है एक्सप्रेसवे का। हाँ, एक्सप्रेस वाला बहुत बढ़िया हो गया साहब। अब कल मैं शाम को इसी टाइम जावरा से चढ़ा था एक्सप्रेस के ऊपर। मैं रात को मतलब 9 साढ़े 9 बजे तो राजस्थान में बढ़ गया था सर। अच्छा। तो आप रामगंज मंडिया के उतरे तो थोड़ा बाकी रह रहा है इसका काम। तो सुरंग वगैरह बन रही है इसीलिए पूरा चालू नहीं है। पूरा अगर कंप्लीट, थोड़ा माधोपुर के पास बाकी रह रहा है ना, अगर पूरी कंप्लीट चालू हो जाएगी तो इसमें बहुत टाइम का बचत हो गया, बहुत टाइम का बचत हो गया। डीजल भी बहुत बचता है।
कितना डीजल बच जाता है? मैं बता रहा हूँ मैम, अब हम उधर से चित्तौड़गढ़ से आते थे, भीलवाड़ा और किशनगढ़ जयपुर पहुँचते थे, और जयपुर से यहाँ शाहपुर आते थे, कम से कम 100 लीटर का फर्क, 8-10 हज़ार रुपये का फर्क है। सबसे मेन तो टाइम की बचत है, हम्म। कुछ भी टाइम नहीं लगता। लेकिन जैसे एक दिक्कत है, लोग कहते हैं कि ढाबे नहीं मिलते, जैसे ये बस ढाबा। वो मेन समस्या तो वही है। एक थोड़ा चोरी चकोरी, अभी कैंटीन है वो तो चालू नहीं हुई, जैसे चाय भी पीना तो चाय की व्यवस्था नहीं है। अगर टायर पंचर हो गया, टायर वाले की भी दुकान नहीं है। अभी मेरे साथ में 2 चक्कर पहले ऐसा ही हुआ। अच्छा। मैंने दिन को उधर जावरे से गाड़ी चढ़ा दी, दोपहर का टाइम था, धूप खिलखली हुई थी, टायर पंचर हो गया, साला कोई टायर वाला है नहीं वहाँ पे। टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया, मैम बोलती ठीक है मैं टायर वाले से बात करवाती, कोई जवाब नहीं मिला उनका। फिर जैसे तैसे दूसरी गाड़ी का जैक वगैरह लेके ट्रॉली के टायर खोल के चढ़ा चढ़ो के जुगाड़ बना के नीचे आए, फिर वहाँ टायर बनवाए। रिश्वतखोरी अच्छा। ये तो खत्म ही नहीं होती मैम। कहते ये गाड़ी अंडरलोड होनी चाहिए। हाँ जब एक बात बता मैम, हम टैक्स भी दे रहे हैं, जी सब कुछ दे रहे हैं, जी तो फिर ये रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए ना। कहते ओवरलोड बंद होना चाहिए। जी। भाई जो ओवरलोड लेकर आके तो गाड़ी जब्त होनी चाहिए, माल जब्त होना चाहिए। माल जब्त होएगा तो जब अंडरलोड गाड़ी चलेगी तो रोड एक्सीडेंट कम होंगे, और अब ओवरलोड गाड़ी चलेगी तो मैम अब जब इस गाड़ी की कैपेसिटी 10 टन की है, हम इसमें 20 टन भरेंगे, थोड़ी रुकेगी। Roadside dhabas with cheap food light up the sides of India's highways where drivers could earlier break their journeys. The infrastructure of expressways is far more sanitary, uniform, and elite in its nature. The roadside chai nukkad has been replaced by Starbucks, small family dhabas by keychain hotels like Haldiram's and McDonald's. While this provides access to standardized hygienic food to passengers, they're othering for the humble truck driver who is not allowed access to these spaces. And so he has to wait 100 kilometers to get his hands on a cup of tea. For now, villagers have opened small establishments in their farms and truckers get off the expressway to access these places. The National Highway Authority of India has planned 270 wayside facilities across the country, of which 94 have been planned on the Mumbai-Delhi Expressway. These wayside facilities will also have designated spaces for truckers. Expressway toll plazas are the biggest problem. Not only are they slowing down traffic, but the toll is exorbitantly high. Between Mumbai and Delhi, Gafar paid 5,500 in toll, negating any fuel efficiency he might have gained. The crippling toll tax is reducing any benefit that transport companies or truckers might have gained. उधर टोल खर्चा ज्यादा जाता है हमारे में। कितना यहाँ के और वहाँ के टोल में कितना फर्क है? 1000 रुपए का टोल का फर्क आ जाता है। 3000 रुपए की मैडम डीजल एक्स्ट्रा खाती है उधर। 4000 का उधर डीजल का रहता है। 5000 का मान लो आप राजी राजी, उधर से होके जाओ, इधर से होके जाओ। अच्छा, इसलिए हम इधर से ही रूट पसंद है। लेकिन वो ज्यादा जल्दी नहीं पहुँचा देता, यहाँ पे तो बड़ा ट्रैफिक लगता है। मैडम जल्दी पूछते हैं, पर उस रास्ते पे हमारे को नींद आने लग जाती है, इसलिए खुला रहा, ये थोड़ा ट्रैफिक की वजह से चलते हैं। पूछ के फिर ऊपर भी जल्दी पूछना पड़ा। मैं बोल रहा हूँ उधर जल्दी नहीं करना है मैम, उधर 5000 का खर्चा है, 5000 बचत इधर हो गई हमारी। 5000 रुपए हमारा बचत चाहिए ना मैडम, नुकसान भुगतने में क्या फायदा। गाड़ियों में वैसे ही 5000 रुपए नहीं वैसा नहीं बच रहे। हमारा वैसे भी 5000 रुपए नहीं बच रहा। हम सब मोटर मालिक है, आपको लग रहा है मैडम मोटर मालिक है। हम सब, ये भी मोटर मालिक है, हम भी, मैं भी मोटर मालिक हूँ, ये भी मोटर मालिक। खुद के ट्रक है। गाड़ियों में क्या बचत है? बचत मैडम बताओ नहीं यार, नहीं ये कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं बच रहा गाड़ी के अंदर। मैडम ये मोटर मालिक है, हमारी खुद की मोटर मालिक है, हम खुद मोटर मालिक। मोटर मालिक है, सच बोल रहा हूँ। खर्चा बहुत ज्यादा है, इधर भी आते हैं टोल टैक्स ज्यादा लगता है। बर्बाद है, हमारा कुछ मतलब नहीं धंधा। लेकिन बना लिया, अब करे क्या, और कोई दूसरा धंधा है नहीं है हमारे। In the meantime, dhabas or other establishments on the old highway are experiencing a sharp loss in business. मैम बिजनेस में लगभग 50 to 60% कटौती आ चुकी है इस कब टाइम। से? लगभग जब से वो एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है, लास्ट पिछले साल से ही आ गए लगभग। तो अब तक इस रोड पे सिर्फ खाटू श्याम का ही काम बचा हुआ है, बाकी जयपुर का टूरिस्ट कोई नहीं है। पहले कहाँ किस शहर तक का टूरिस्ट आपके पास आ जाता? पहले यहाँ पर आप ये समझ लो, पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर, सबकी गाड़ियाँ आती थी हमारे पास। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर सबके, और सब जाते थे, मुंबई तक जाते थे। लेकिन आज इस रोड यहाँ पर सिर्फ खाटू श्याम के ही दिल्ली वाले और यूपी वाले, बस 2 गाड़ियाँ आती हैं, दिल्ली की और यूपी की, और खाटू श्याम जाने वाली। आपको ये ढाबा चलाते हुए कितने साल हो गए? मैम हम तो अभी आए हैं, हमारे पिताजी इस रोड पे हो गए 35 साल से। अच्छा। हाँ, वो अभी फिलहाल यहाँ है नहीं, घर पर है वो। तो उनको 35 साल हो गए इस रोड पे ही।
कई जगहें बदली, कई चले अच्छे चले, रेंट पे रहते हैं 5 साल 10 साल, तो वो करके अच्छा अपने बढ़िया चलता था सिस्टम। तो यहाँ बिजनेस कम हुआ है तो इससे आपको यहाँ पे रेंट भी गिरता दिखा है? रेंट नहीं, रेंट उतना ही है मैम, सेम कितना रेंट है यहाँ जो हमने पहले रेंट यहाँ पे है 30,000 रुपये महीने का? महीने का रेंट 30,000 रुपये है, जो स्टार्टिंग से था वही है, लेकिन अब काम डाउन होता जा रहा है, वही रेंट चलता है। रेंट तो बल्कि अभी हर आप मुनाफा कमा पाते हो या नुकसान में चल रहा है बिजनेस? मैम ये समझ लो बस बराबर चलता है। Villages through which the expressway bypasses also have their fair share of complaints. एक्चुअली क्या है कि जैसे हम उम्मीद कर रहे थे पहले कि गांव में बड़ी खुशी की लहर हुई थी जब ये मंजूर हुआ था और यहाँ बढ़ना शुरू हुआ था, तो गांव के लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई थी। लेकिन वो चीज़ जब हमने ये देखा ये बन गई, और बाद में जब हमने देखा तो वो चीज़ हमें जो हम सोच रहे थे, जो उम्मीद करी बैठे थे, वो लाभ हमें मिल नहीं पाया। अच्छा, कैसे? इसके विपरीत कुछ नुकसान और परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है आज भी हमें। जी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जहाँ जो एक गांव के जितने भी जहाँ जो रकबा है, जमीनात हैं, तो यहाँ बीच में के ये उसके बीच में के निकला है ये रोड, तो ये निकला है हाईवे। तो इसमें क्या है कि कई बार क्या है कि जैसे मेरे यहाँ पर 10 किले हैं, तो उनके बीच में के ये रास्ता निकला है, बीच मध्य में के। तो अब आधे जो खेत थे मेरे वो उरली तरफ, और आधे खेत इसके विपरीत दूसरी तरफ रह गए। अब सपोज अगर गांव से जो ये रास्ता जा रहा है, यही ले लो, ये सामने वाला रास्ता है, अब वो मेरे अगले खेतों के लिए भी जा रहा था, लेकिन आज ये रोड बन गए के बाद यहीं ब्लॉक हो गए। अब समस्या मुझे और हमारे गांव के लोगों को यह है कि आगे जो खेत हैं जो बच गए वहां कैसे पहुंचा जाए। भाई ये जल भराव की है, इसके कारण क्या है, जो पहले क्या था, पानी जो बरसात का पानी था, बरसात के जो मौसम में वो बरसात का पानी बह जाता था नीचे। हमारे यहाँ पड़ोस में नाला है, एक गंदा नाला कह सकते हैं उससे, जिसमें बरसात का पानी चला जाता बहकर। अब वो इधर है, तो यहाँ बीच में भाई इसकी काफी हाइट है, तो जो ये बरसात के लिए जो बारिश के पानी के लिए यहाँ जो हाईवे डिपार्टमेंट ने जो बनाई थी और पुलिया दी थी पुलिया, लेकिन वो भी बहुत काफी सिकुड़ी और छोटी थी। और दूसरा वो उनको अगर उनमें के भी क्या है कि वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें मिट्टी आदि अन्य चीजें डल जाती हैं, और ब्लॉक होने के कारण वो भी ब्लॉक हो जाती है। अब ये समझो कि यहाँ अगर बरसात होगी तो पानी यहाँ लगभग ज्यादातर यहीं ब्लॉक हो जाएगा, आगे जा नहीं पाएगा, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। From congested highways to free-flowing expressways, from colorful highways to isolating dark expressways, and indeed from highways which were riddled with harassing officials to expressways where there is nothing for miles. Truck drivers are going through a radical shift in the kind of culture that they have experienced so far. And while some are modernist, adjusting to the benefits of the expressways and looking forward to the future, others remain skeptical. Are the expressways built for the king of the highways? For The Print with Mohammad Hamad, this is Shubhangi Mishra reporting from Delhi-Mumbai Expressway.